Hello students, welcome to the channel. I'm पूनम दुआ फ्रॉम एमेंट एजुकेशन अकेडमी ऑफ लिटरेचर। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छी हेल्थ में होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड का बहुत ही प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देकर। तो आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि यूजीसी नेट, एमए इंग्लिश एंट्रेंस और सभी लिटरेरी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज़ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय। लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे राइटर के बारे में, सेकंड पार्ट में हम जानेंगे इस नॉवल की स्टोरी के बारे में, और थर्ड पार्ट में हम जानेंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच हैव बीन द पार्ट ऑफ द previous competitive exams and which can be the part of various competitive exams. So let us start the video now. The God of Small Things is the debut novel of the Indian writer Arundhati Roy, and it is a story about the childhood experience of fraternal twins. दो fraternal twins की story है। fraternal twins क्या होते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। fraternal twins whose lives are destroyed by the love laws. सोसाइटी ने जो लव के लॉज बनाए हैं उनकी वजह से इन ट्विंस की लाइफ किस तरीके से डिस्ट्रॉय होती है। द स्टोरी लेज डाउन दिस फैक्ट। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक depicts a complex mix of emotions as well as it exposes the ugly face of caste system of the society, patriarchy system of the society. It touches on every aspect of human life, such as you can say happiness, love, sexuality, gender difference, sadness, death, sexual and physical exploitation, and much more. This book, you can say, is a mirror of society, mirror of our present day society basically, and the plot is very well woven, very well knit, and a real retreat to the world, real picture of the world. अब बात करते हैं अरुंधति रॉय के बारे में। इनका पूरा नाम सुज़ैना अरुंधति रॉय है। शी इज़ एन इंडियन ऑथर best known for this novel only, The God of Small Things, which won the Man Booker Prize for Fiction in 1997 and became an instant hit, the best-selling book by this author. She is also a political activist involved in human rights and environmental causes. Born on 24th November 1961, at present she is around 59, and she was born in the beautiful northeastern city Shillong. As I told you, she is an environmental activist and she has worked for Sardar Sarovar project. She has campaigned along with other activists like Medha Patkar against the Narmada Dam project, saying that the dam will displace 500,000 people with little or no more compensation and will not provide the projected irrigation, drinking water and other benefits as said by the government. She donated her Booker Prize money as well as royalties from her book on the project to the Narmada Bachao Andolan. उनकी एक और बुक के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे, बट आपको ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। वन मोर फेमस फिक्शन बाय हर इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस. दिस इज़ द सेकेंड नॉवल बाय हर and published in 2017, you can say 20 years after her debut novel The God of Small Things, and this particular novel has been translated into 50 languages including Urdu and Hindi. The novel weaves together stories of people navigating some of the darkest and most violent episodes of modern Indian society, from land reform that disposed poor farmers, poor families, to 2002 Godhra train burning, Kashmir insurgency. Roy's characters run through the happenings of Indian society and include an intersex women, जिसको हम हिंदी में हिजड़ा कहते हैं। intersex women का भी जिक्र है इस नॉवल में। there is a rebellious architect and her landlord who is a supervisor in the intelligence service. The narrative spans across decades and locations, but primarily takes place in Delhi and Kashmir only. अब मैं आपको पहले बताती हूँ फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो में ही बाद में बताऊँगी व्हाट इज़ फ्रेटर्नल ट्विंस. फ्रेटर्नल ट्विन इज़ आइदर वन ऑफ अ पेयर ऑफ ट्विंस हु डू नॉट लुक लाइक ईच अदर,
Although fraternal twins hang out in the womb and are bound together, they actually develop from different fertilized eggs and do not share the exact same genetic material. तो इस नावल में दो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं. इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बट डिटेल्ड स्टोरी आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में ही पढ़ पाएंगे. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज़ अ हार्ट रेंडरिंग, हार्ट टचिंग स्टोरी अबाउट टू ट्विंस, टू फ्रेटर्नल ट्विंस. फ्रेटर्नल क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. टू फ्रेटर्नल ट्विंस, एस्था एंड राहेल. एस्था एंड राहेल अलॉन्ग विद देयर मदर जिसका नाम अमू है, लिव इन देयर मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन अयमनम केरला. फॉलोइंग अमू's divorce, Amu works in the family's pickle factory, in spite of which she and her kids are denied any rights, let live alone by her Oxford returned brother Chaco, who considers them nothing less than milestones around his neck. तो फैमिली का पेट्रियार्की सिस्टम दिखाया गया है कि अमू भी फैक्ट्री में काम करती है, फैमिली की फैक्ट्री में काम करती है, लेकिन उसका कोई भी शेयर नहीं है और शी इज़ अ डिवोर्सी और वो अपने मैटरनल हाउस में रहती है, अपने पेरेंट्स के हाउस में रहती है. सो चाको अमू के ब्रदर का नाम है. चाको कंसीडर्स देम जस्ट अ माइलस्टोन अराउंड हिज नेक, अपने लिए एक मुसीबत से ज़्यादा कुछ नहीं समझता. द स्टोरी गोज़ फर्दर व्हेन चाको's ex-wife मार्गरेट ब्रिंग्स देयर डॉटर सोफी टू आयामेनम ऑन अ विजिट फ्रॉम लंदन. तो चाको की एक्स वाइफ आती है केरला में और अपनी डॉटर सोफ़ी को विज़िट करवाना चाहती है आयामेनम. The ill-fated visit ends in the demise of Sophie, for which Esther and Rahel have to pay a heavy price. तो किस तरीके से सोफ़ी की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के इंसिडेंट के बाद से ही एस्था और राहेल को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. स्टोरी में हम डिटेल में जानेंगे ये सब कुछ. द किड्स आर द बिगेस्ट विक्टिम्स एज दे आर स्नैच्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड. तो ऐसा लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद बच्चों से उनका बचपन, उनकी इनोसेंस सब छिन गई है, उनकी हैप्पीनेस छिन गई है. द स्टोरी रिवील्स हिस्ट्रीज क्रूअल वे ऑफ taking revenge at people who break the love laws and the laws that lay down who should be loved and how much. इस पूरी स्टोरी के मेजर कैरेक्टर्स की 3 जेनरेशन्स हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए थोड़ा, तो स्टोरी समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. फर्स्ट जेनरेशन में जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं पपाची और मामाची और बेबी कोचम्मा और मुलिगन. जैसा कि मैंने आपको बताया था, अमू जो कि बच्चों की मदर है. तो सेकंड जेनरेशन में अमू और चाको हैं, हु आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. चाको की वाइफ यू कैन सी मार्गरेट रिटर्न ओवर हेयर एंड अमू का हस्बैंड बाबा. चाको और अमू के पेरेंट्स पपाची एंड ममाची एंड द सिस्टर ऑफ पपाची इज़ द मेल, सिस्टर ऑफ पपाची बेबी कोचम्मा और बेबी कोचम्मा का लव इंटरेस्ट मुलिगन. थर्ड जेनरेशन में जो लोग हैं वो है सोफ़ी जो कि मार्गरेट और चाको की डॉटर है, और एस्था एंड राहेल जो कि अमू और बाबा के बच्चे हैं. तो यहाँ पर आप लिंक देख सकते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो का, जिसमें आपको स्टोरी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. Please do watch all parts of the videos to have a better understanding of the story, and do not forget to share and subscribe the channel. For our online classes you can contact as per the number given on the screen.